বাহাদুর বাহাদুর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ফাউন্ডেশন ডে পালিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচে মানুষ। ৭২তম কর্পস বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৫৯তম উত্থাপন দিবসটি পাঞ্জিপাড়ার সামনের প্রাঙ্গণে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে উদযাপনের মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে কোরের কর্মকর্তা, অধস্তন কর্মকর্তা, নারী সদস্য ও সৈনিকদের শৃঙ্খলা উদ্দীপনায় সিক্ত হতে দেখা যায়। সোমবার আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোরের প্রতিটি সদস্য কর্মীরা এবং তাদের পরিবারগুলি উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপস্থাপন করে। মিসেস মোনা আউল বাওয়ার সভাপতি, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আঞ্চলিক সদর দপ্তর কিষানগঞ্জ জনাব ইশ আউল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল রিজিওনাল হেডকোয়ার্টার কিষানগঞ্জের উপস্থিতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণকে বাহিনীর স্বর্ণালী ইতিহাস এবং এর বিগত ৫৮ বছরের মেয়াদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বাহাতারের গৌরবময় কৃতিত্ব এবং বাহিনীর ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে বলা হয়েছিল যে ১ এপ্রিল ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে আইপিএস কমান্ড্যান্ট শ্রী আর কে ত্রিবেদীর নেতৃত্বে বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে কর্পস সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছিল, যার ফলস্বরূপ কর্পস কর্মীদের ০২টি বিশেষ সেবা পদক, ০৩টি সেনা পদক এবং অনেক প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। ভারত পাকিস্তান সীমান্ত এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে নকশালবাদ নির্মূলেও বাহিনী অবদান রেখেছে। বর্তমানে কোর্টটি ২০২১ সালে সেপ্টেম্বর থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে এবং কমান্ডার শৈলেশ কুমার সিনহার নেতৃত্বে দায়িত্বের এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অত্যন্ত সফলভাবে অবদান রাখছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রী ধনঞ্জয় মিশ্র কমান্ডার ১৩২তম কর্পস, শ্রীমতী এবং শ্রী অনিল হটকার কমান্ডার আঞ্চলিক সদর দপ্তর কিষানগঞ্জ, শ্রীমতী এবং শ্রী ইমামচাঁদ খেমরাজ ওয়ার্ল্ডে কমান্ডার আঞ্চলিক সদর দপ্তর কিষানগঞ্জ, শ্রী অজয় কুমার শুক্লা 7 কর্পস 1 কমান্ডার, শ্রী অমল সিং রাঠোর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ১৭৫তম কর্পস অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন এবং কর্পের কর্মীদের এবং তাদের পরিবারকে উৎসাহিত করেছেন। President Baba Sector Kisanganj, Mrs. Sinha, President Baba, Samgupal BSF, all lady wives. Sinha sir, all my brother officers, all मेरे एचओ साहिबान, all मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदरणीय महिलागण और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको आपके सबके जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारक। यानी कि 58 साल हो चुके हैं और हम में से किसी की इतनी उम्र नहीं है जितनी बटालियन की उम्र हो चुकी है। इस बटालियन के लिए सचमुच ताली बजती है, बहुत बीएसएफ की अग्रणी बटालियन में से हैं जिन्होंने शुरू में ही बीएसएफ का 65 में जब शुरुआत हुई उन दिनों में ही उनको नींव रखा गया और बड़ी एक लेगेसी लेके चल रही है। पैट्रिमनी बटालियन के खून में इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना अच्छा काम करने के लिए, इतना मनोरंजन करने के लिए, इतना खुशी देने के लिए, इतनी खुशी लेने के लिए अगेन मैं पूरी बटालियन के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका रिजिंग डे है, जन्मदिन, सबसे एक महत्वपूर्ण दिन है। 65 दिन के बाद ये दिन आता है, तो इसको ढंग से मनाना हर बंदे का फख्र की बात है, हर बंदे को खुशी होनी चाहिए। और साथ में हमें उन लोगों को याद करना है जो वाहिनी छोड़ के, जिन्होंने उस समय स्थापित किया और तब से लेकर 58 साल तक ऐसे अनगिनत लोग जो वाहिनी में आए और चले गए। कुछ लोग अभी भी वृद्ध अवस्था में होंगे, 60, 70, 80, 90 साल के, और कुछ लोग होना हो भगवान को भी प्यारे हो चुके हैं। मैं उन सबके चरणों में नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाहिनी को रेज किया और जिसकी बागडोर श्री सिन्हा के हाथ में है। उस वाहिनी के सभी उन साथियों के बहुत बहुत मुबारक। हमेशा याद रखिए, वाहिनी जिस तरह से काम कर रही है बल्कि दुर्गम जगह पे सबसे डिफिकल्ट और सबसे चैलेंजिंग एरिया अगर सेक्टर का है वो 72 का। यहाँ पे कई ऐसे कारण हुए हैं बॉर्डर पे जिस कारण से बहुत लोगों ने मुश्किल में आए। दिन रात वाहिनी के लोग अपनी इतनी मेहनत करते हैं। आज हमारी वाहिनियां, कुछ कंपनियां बाहर चली गई हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए, उसके बावजूद भी
जो वाहिनी के बचे हुए लोग हैं अपने अधिकारियों के नेतृत्व में, अपने सीओ साहब के नेतृत्व में दे आर डूइंग वंडर्स। और ऐसे चैलेंजिंग एरिया में हम सब लोग हैं। एक इंसान था रॉबर्ट बसाटा, अगर नाम बच्चे बात ना करें तो। हेलो, रॉबर्ट बसाटा वाला पर्सन जिसने कि जीरक्स मशीन का जब शुरुआत में हुई अमेरिका में, उसको निर्माण में उसका बड़ा योगदान। तो 1960 के आसपास की बात है, उस समय जीरोक्स और फोटोकॉपी वगैरह का जमाना नहीं होता। हाथ लिखते थे, कार्बन कॉपी से लोग लिखते थे, टाइपिस्ट करते करके रिमेंटन टाइप थे, इतना करके लिखते थे। नई मशीन आई तो अमेरिका में एक जगह है ओहायो बोलते, वहां पे जब इसका शुरुआत हुई तो कहा गया कि एक ब्रांच इसकी ओहायो में खोली जाएगी अमेरिका में। तो उस समय भी कहा गया कि ओहायो में सबसे बैकवर्ड इलाका पूरे अमेरिका के अगर 50 स्टेट्स में सबसे ओहायो इज वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स में आता है। जैसे कि इंडिया में अपना छत्तीसगढ़ हो गया है, जहां पे फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली थोड़ा लोग कम है। तो वहां पे ऐसा ही एक इंसान को भेजा गया बसाटा को कि तुम जाके वहां पे जीरोक्स मशीन को शुरुआत कराओ। देन ही वॉज मेड ए सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस। उसके ऑफिस में सिर्फ 6 लोग थे। जाते ही पहले दिन बसाटा ने क्या किया, जाके कहा कि आप लोग यहां पे कैसे हो, ऑफिस में कैसे हैं। कहने का मतलब एवरीवन शुड बी आउट। और उसने वहां पे ये नींव रखी कि मैं अकेला ही ऑफिस चलाऊंगा और एवरीवन विल गो एंड फेच द ऑर्डर्स फ्रॉम अदर साइड। तो ये उसका नाम एक्चुअली हिस्ट्री में दर्ज हुआ है। उसने जीरो से इस आज जहां पे पूरे फोटो कॉपीज को लेके कहां जाते हैं, तो ये स्टडीज हैं जो हमें एक लेसन देती हैं। ऐसा ही बसाटा हमारे मेरे साथ खड़ा मेरे पास, क्योंकि वाहिनी जिस तरह पे यहाँ पे आई मुझे ध्यान है, तो उस समय बड़ी जरूरत थी कि लोगों को सबको एकजुट करने के लिए। कई बार उसको हार होना पड़ा। बसाटा को उसने जब ओहायो में उसने कहा, लोगों ने कहा कि दिस इज नॉट द वे, हम यहाँ ऑफिस में काम करने का ना, ऑफिस तो कब चलेगा ना, मेरे पास ऑर्डर होगा तो तुम लोग ऑफिस में नहीं हो, तुम्हारा काम है पहले ऑर्डर लेके आना, जब आएगा तब हम मशीन में चलाएंगे। तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको बटालियन के लिए, बटालियन हित के लिए, जो कि कई बार कठोर लगते हैं। बट एक्चुअली बटालियन